دشمن مصطفیٰ خیریت ہی نہیں مل نہیں پائے گی تم کو راحت کہیں. تم پٹو گے بہت قبر میں دیکھنا, تم پٹو گے بہت قبر میں دیکھنا, اپنی ذلت تو تم حشر میں دیکھنا, اپنی ذلت تو تم حشر میں دیکھنا. بس غلام ان کے مسرور ہیں, یہ وہابی تو لنگور ہیں. محترم سامعین اکرام، آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ تبلیغی جماعت والے سے نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بارے میں بات مت کریں. آپ لوگ عقیدے کے بارے میں بات کریں, عقیدہ کیا ہے, کیونکہ یہ لوگ نماز روزے کے تعلق سے ہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. آپ حضرات اس آڈیو میں سنیں گے, دیکھیے کس طرح یہ گمراہ ہوا یہ شخص. تو آپ حضرات عقیدے کے بارے میں پوچھیں. آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں. فیصل دیوبندی صاحب بول رہے ہو؟ ہاں کچھ بات کرنا تھا, بہت دن سے آپ سے بات نہیں کیا. آپ بولو. کہاں کے رہنے والے ہو آپ؟ ہم بہار, بہار میں کون سا ضلع؟ منگیر. ہاں, منگیر مونگیر ضلع. آپ کیا کام کرتے ہو؟ ویسے تجارت کرتے ہیں. تجارت کرتے ہیں, کس چیز کی؟ ریڈی میڈ کپڑے. اچھا, آپ مولوی ہو؟ نئے دکاندار. اچھا, آپ پہلے بریلویوں کے خلاف آپ واٹس ایپ پہ بہت ایکٹیو رہا کرتے تھے, آج کل دکھائی نہیں دے رہے, غائب ہو گئے ہو, کیا بات ہے؟ ہاں, اب کام میں مشغولیت میں اب کیا کہا جائے. اچھا چلو, کچھ باتیں گفتگو کچھ ہو جائے تاکہ مجھے پہلے پتہ چلے کہ کس وجہ سے آپ لوگ بریلویوں سے ناراض ہو اور بریلویوں پر فتویٰ لگاتے ہو, بریلویوں کو گالی گلوچ کرتے ہو. وجہ کیا ہے؟ پہلے ہم لوگ بھی بریلویت تھے حضرت. پہلے اچھا. ہم لوگ بھی جو ہے نا, ہوں. پہلے پیور بریلوی تھے, کٹر. اچھا جماعت والے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے. اچھا, تو جماعت والے کی تو چلیے, بریلوی میں کون سی غلطی آپ کو نظر آئی, کون سے عقیدے سے آپ نے توبہ کیا کہ بریلوی سے توبہ کر کے آپ دیوبندی بنے؟ ذرا بتا دیجیے. وہ تو مولوی سب بتایا کہ ایسے ایسے بات ہے, کیسے کیسے مولوی بات؟ سب بتایا, ہم لوگ اتنا جانتے نہیں نا. نہیں, آپ کیا جانتے ہیں, کس جانکاری سے آپ کو کون سی بات بری لگی؟ پہلے جب کٹر بریلوی تھے تو کٹر بریلوی تو بریلویوں کی بہت ساری باتیں جانتے ہیں, تبھی تو کٹر بریلوی ہوتے ہیں. جب آپ کچھ جانتے نہیں بول رہے ہیں اور کٹر بریلوی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. نہیں, وہ ایمانداری قسم کھا کے بولتے پیور بریلوی تھے. تو کتنے سال ہوا بریلوی سے توبہ کر کے؟ ان کو لگتا ہے 12-13 سال ہوتا ہوگا. اچھا, تو مدرسے میں کچھ پڑھے ہیں آپ؟ ہلکا. آپ قرآن شریف پڑھنے آتا ہے آپ کو؟ اچھا, قرآن تو حدیث سب پڑھے. تو بتائیے نا, آپ پڑھے جب کا جماعتیں میں جا کے پڑھے. نہیں 40 دن بریلوی 4 مہینے کوئی لگائے نا, 4 مہینے لگائے. اس میں تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے, کلمہ تک پڑھنے کے لیے نہیں بتاتا تھا. اسی میں یہ تو گئے آپ آپ بتا رہے ہیں, پہلے آپ کی جھوٹ ثابت ہو گیا. آپ کہہ رہے کٹر بریلوی تھے اور آپ کو کچھ مسئلہ مسائل کچھ معلوم ہی نہیں تھا اور آپ کٹر بریلوی تھے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے جو کٹر بریلوی ہوتے ہیں نا, کوئی بھی کٹر بریلوی کو لے کے آئیے سامنے, الحمدللہ اس کو سارے مسئلے مسائل آپ سے زیادہ معلوم ہوگا. ابھی آپ کی عمر کتنی سال ہے؟ یہ 40-45. 40-45 سال. ابھی میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں. یہ سانگلی, مہاراشٹر میں سانگلی ضلع میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا. تو عصر کی نماز پڑھ کے ہم باہر نکلے, 4 دیوبندی اجتماع کی دعوت دینے کے لیے مسجد کے اندر آ رہے تھے. مسجد کے سامنے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے. ہم عصر کی نماز پڑھ کے ہم مصلیین اکرام کے ساتھ باہر نکلے تو دیوبندی 4 لوگ اجتماع کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے, تو وہ سیدھا مسجد میں گھسے. پھر ہم نے سوچا کہ چلو ان کا نماز پڑھنے آئے, نماز پڑھنے دو, بعد میں بات کرتے ہیں. تو ہم مسجد کے برندے کے باہر کھڑے تھے, 4 دیوبندی وضو کر کے نماز پڑھ رہے, الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے. تو ہم نے پیچھے کھڑے ہو کے 4 کی نماز ہم نے دیکھ لیا. پھر نماز کے بعد ہمارے سامنے آئے, آ کے بولے کہ
सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया और हाथ बढ़ाए, मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाए। मैंने कहा मुसाफा छोड़िए, आप बताइए क्या कहने के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं आप यहाँ। तो बोलने लगे कि हमने यहाँ हमारा इज्तिमा है, इज्तिमा की दावत देने के लिए आए। तो हमने कहा कि इज्तिमा में जाने से क्या होगा। तो बोले इज्तिमा में जाने से अल्लाह रसूल की बात होगी, दीन और शरीयत मालूमात होंगे, लोगों के इल्म में इजाफ़ा होगा और दीन के काम करना आसान होगा, दीन के काम का जज्बा पैदा होगा। तो मैंने कहा अच्छा, दीन के काम के जज्बा पैदा करने के लिए इज्तिमा में जाना है तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए दीन का काम आप कितने साल से कर रहे हो। तो 4 लोग थे, चारों ने एक 8 साल से दीन का काम कर रहे हैं जमात में, पक्का जमाती, और साल में 3 महीना 4 महीना लगाते हैं। और एक 7 साल से कर रहे हैं, कि 12-13 साल से कर रहे हैं, यानी बड़े बड़े ज़िम्मेदार आए थे। तो हमने कहा आप चारों लोग जो दीन का काम कर रहे हैं, आपको खुद नमाज नहीं आता पढ़ने, 12-13 साल बर्बाद किए हो, आप 40 दिन मेरे साथ गुजारो इस मस्जिद में, मैं आपको खाना पीना भी दूंगा और मेरे साथ यहाँ रहो और आपको नमाज सिखाऊंगा, कुरान भी तजवीद के साथ सिखाऊंगा और आपको पूरी दीन की हर मालूमात आपको दूंगा। 40 दिन मेरे साथ रहो यहाँ इस मस्जिद में, मैं खाना पीना का मेरी जिम्मेदारी। तो बोले हमारी नमाज में क्या गलतियाँ हुई। तो हमने कहा पहले तो ये बात है कि आप सिजदे में गए हो, आपके दोनों पैर ऊपर उठ गई थी, पैर के अंगूठा ज़मीन पे लगे रहना चाहिए ना, लगे पैर उठने के बाद नमाज जो है ना मकरूह हो जाता है, फासिद हो जाता है। दोनों पैर, एक पैर उठे तो मकरूह होता है, दोनों पैर अगर उठ जाए तो नमाज फासिद हो जाती है। तो आप बताइए चारों 12-13 साल में 12-13 साल तबलीग कर रहे थे। अब मेरे गवाह है, पूरे हमारे मस्जिद कमेटी, मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले 8-10 लोगों ने ये बात देख लिया है। फिर हमने कहा कि आप दीन का काम 13 साल से कर रहे हो और आपको दीन मालूम नहीं, नमाज के तरीका आपको मालूम नहीं। आप जब हाथ बांधे हो, हाथ के 3 उंगली जो है दूसरे हाथ के दूसरे हथेली के पीठ पर होना चाहिए, 3 उंगली, और 2 उंगली से पकड़ना चाहिए। तो आप पूरे पकड़ने का तरीका भी सुन्नत के खिलाफ था, हाथ बांधने का तरीका। तो धीरे-धीरे सीखता है, क्या तो फिर सीखेगा। तो बताइए आप जो कह रहे हैं, आपका कहना मैं नहीं जानता, आपको झुठला नहीं रहा हूँ, आप भी अपनी जगह पे सच्चे होंगे। बरेलवियत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और देवबंदियों का जो इख्तिलाफ है ना, वो अकायद पर है। ये मसले मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग भी बहुत जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ, हमारे जो भी अवाम उलमा के सोबत में रहते, उलमा से कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा से जो कांटेक्ट रखेगा तो बुद्धि हो ही नहीं जाएगा, इल्म, लेकिन रखवे नहीं करता है। इसमें जो है उसके जिम्मेदार तो हम नहीं है। से तौबा करने के बजाय, सुनिए ना हजरत, इसमें जो है ना इमाम का कदर करवे नहीं करता है। कौन इसमें मौलवी का कदर करवे नहीं करता है। कौन बरेलवियों में मौलवी की कदर कौन नहीं करता बताइए। अरे अवाम है बहुत कदर नहीं, नमाज का कदर देवबंदी में करते हैं। मैं देवबंदी इमाम था, सुनिए, मैं भी देवबंदी मदरसे से फारिग हूँ और 7 साल मैंने देवबंदियों की मस्जिद में इमामत किया। बेंगलोर में एक जगह पे इमामत किया मैंने, ईद के दिन भी मोहल्ला वालों ने मुझे खाना नहीं दिया, भूखा रहा ईद के दिन भी। अरे भाई बहुत, आप बताइए देवबंदी लोग कदर करते हैं किसी भी मस्जिद। सुनिए ना, वो सब बात छोड़िए, अकायद है, शरीयत जो है, इसमें बहुत सारी झूठी बात जो है ना है, इसीलिए जो है ना इसमें देखिए, हम लोग जब बरेलवियत थे ना हजरत, इमाम था वो आलिम अपने आप को कहता था, ऐनुल नाम था, ऐनुल साहब, बड़ी कदर। और वो जो है मुहर्रम के महीना में कुरान कसम खा के बोल रहा है, कुरान की कसम, अल्लाह की कसम, वो इमाड़ा पर मुहर्रम जो तजिया नहीं बैठता है, वो चारों तरफ घूमाता था, चारों तरफ पैक लगो, पैकर पैकर हो तुम। और इमाम हुसैन हसन नाम है रजी अल्लाह अन्हु, और वो जो है ना अपने जबान से हसल बोलो, बढ़िया से बोलो, हसल हसल हसल। और इसीलिए समझे ना, ऐसा बिदत करवाता था। और अभी भी बिदत बहुत है, आप चले जाइए मज़ारों पर, वो जो एक क्या नाम है खादिम साहब, वो 2 करोड़ का गाड़ी से घूमता है, BMW से।
وہ جو ہے نا چادر چڑھوایا, سمجھے نا, جو صرف بدعت ہے. اور تنی سے تو آپ الگ ہو جائیے گا نا, چادر چڑھا کے ترنت نکال کے بیچ لے گا وہ. کون سے درگاہ کے خادم کی بات کر رہے ہیں؟ مزاروں پر ہو, دیکھیے جا کے. تو مزاروں پر جو ہو رہا ہے اس کو اصلاح کون کرے گا بتائیے؟ اصلاح کریے گا آپ لوگ, اور کیا کریں گے, علماء کریں گے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی مزاروں پہ غلط ہو رہا ہے تو آپ تو یہ نہیں کہ آپ بریلوی سے اس وجہ سے توبہ کر لیں. ایک بات یاد آئی, سمجھے نا, ایک بڑی مسجد ہے ہمارے بہار میں, بھاگلپور سنے ہوں گے. ہم گئے اپنی آنکھ سے دیکھے, بولا عرس لگتا ہے, عرس تو عرس میں ہم لوگ بھی چلے جاتے ہیں, ذرا دیکھیں کیا کرتا ہے. نماز کا کوئی پابندی نہیں, قریب قریب 5,000 آدمی, امام بھی, سمجھے نا, امام بھی کون گھڑا لے کے, سمجھے نا, گھڑا لیے ہوا تھا, گھڑا نہیں مٹی کا گھڑا ہے, اس میں سالوک, جو ہندو سب سالوک کپڑا ہوتا ہے, اس کو اوڑھا کے سب مسجد کے کنارے رکھ رہا تھا, سب آدمی لائن صف لگا کے. ہم بولے یہاں کیا, بولا کون سی تو ہے اس خانی ہے, اور یہاں جو ہے نا چڑھایا جاتا ہے. کیا گھڑا چڑھایا جاتا ہے. نہیں, آپ کو جانتے نہیں, آپ بالکل نہ کسی سے پوچھے نہ کچھ آپ جانتے ہو. اصل میں کیا ہم ہے, نہیں پوچھے نہیں پوچھے تو آپ کیوں بدگمانی کر رہے ہو؟ اچھا وہ کیا ہو رہا تھا, وہ گھڑا جو ہے, اچھا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں. علماء یہ سب پہلے تو یہ کہتے ہیں جلوس کی شکل میں درگاہ شریف کی طرف رواں دواں ہو کر جلوس درگاہ شریف میں جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں, دعا درود پڑھتے ہیں. گھڑا تھا, گھڑا, وہ گھڑا مسجد میں رکھے کس لیے معلوم, وہ بتاتا ہوں میں. نماز کے بعد وہ جلوس کی شکل میں مسجد سے درگاہ شریف کی طرف جائیں گے. جانے کے بعد اس گھڑے میں ہوتے ہیں خوشبو, مشک و زعفران, سندل وغیرہ ہوتے ہیں, خوشبو ہوتے ہیں, اور سب اپنے اپنے ہاتھوں سے وہ خوشبو ہاتھ میں ملیں گے اور درگاہ شریف میں خوشبو معطر کریں گے, سب اپنے اپنے ہاتھوں سے کریں گے. ان کا ہاتھ بھی خوشبو سے معطر ہوگا, اور درگاہ کے در و دیوار, چادر وغیرہ خوشبو سے معطر ہوگا. یہ کیا جا رہا ہے, یہ کوئی بدعت خرافات کچھ نہیں ہے. یہ اس کے کیا ہے, لوگوں کے ہاتھ خوشبو ہونے کے لیے اور درگاہ شریف خوشبو سے معطر کرنے کا ایک ذریعہ. پوچھے نہیں کسی سے, ہم تو دیکھیں جو آپ بتا رہے ہیں 100-150 گھڑا جمع ہو گیا ہوگا, وہ گھڑا رکھنے کی جگہ نہیں. وہاں کوئی اور چیز ہوگا, میں نہیں جانتا, لیکن ہمارا یہ گھڑے کی جب بات کر رہے ہیں ہم لوگ, عرس سے پہلے کیا ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے, مطلب ایک ہی گھڑا, 1-2 گھڑا ہوتے ہیں جس میں الگ الگ قسم کے 2-4 گھڑے ہوں گے, سب میں الگ الگ قسم کے خوشبو ہوں گے, اور ان خوشبوؤں سے در و دیوار کو اور چادر کو لوگ اپنے ہاتھوں کو خوشبو سے معطر کریں گے. جب خوشبو لگانا, خوشبو سے محبت کرنا, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. عقیدے کی بات کرو, جیسا ہم دیوبندی اور بریلویوں میں عقائد کا کوئی ڈیفرنس ہے, کوئی فرق ہے, اس وجہ سے آپ نے اگر توبہ کیے ہوتے. کوئی فرق نہیں ہے, زیادہ کوئی فرق نہیں, ہلکا پھلکا وہی جو ہے, سمجھے نا. آپ ہلکا پھلکا کہہ رہے ہیں. ایک عقیدہ آپ کو بیان کروں تو آپ شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے. دیوبندیوں کا ایسا گندا گھٹیا عقیدہ ہے, اور آپ وہ عقیدہ معلوم کرنے کے بجائے آپ جاہل عوام کا کوئی عمل دیکھ کر آپ توبہ کر لیے. آپ یہ بتائیے, آپ مسلمان اگر کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی مسلمان ہے شراب پی رہا ہے, تو کوئی دوسرا مسلمان دیکھے, ارے یہ مسلمان ہی جب شراب پی رہا ہے, اب اسلام میں رہ کے کیا فائدہ, معاذ اللہ, ایسا سوچ کر اگر کوئی عیسائی ہو جائے تو غلطی کس کی ہے؟ غلطی کس کی ہے بتائیے. اب وہ شراب پینے والا مسلمان کو تم دیکھ کر اگر اسلام سے بدزن ہو جاؤ گے تو غلطی تمہاری ہے. شراب پینے والے مسلمان کو مت دیکھو, اسلام کو دیکھنا ہے. ہمارے معتبر علماء کو دیکھو, ہمارے عالم بعمل تہجد گزار, دن رات قرآن شریف تلاوت کرنے, قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے کو دیکھو, تب تم کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا. تم شرابی کبابی کو دیکھ کر اگر اسلام سے بدزن ہو جاؤ گے تو غلطی تمہاری ہے, اسلام کی غلطی نہیں ہے. اسی طرح اگر بریلویوں کی اگر آپ دیکھنا ہے تو بریلوی ہمارے بڑے بڑے علماء, ہمارے اللہ والے, ہمارے بزرگان دین جو عالم بعمل, جو شریعت اور طریقت کے ایک بات بولیں, اس میں بھی اس میں سب میں پرہیزگار تقوی والا سب ہے. کوئی آدمی جو ہے نا برباد کر دیتا ہے لوٹنے کے لیے. آدمی کوئی آدمی آیا, دیکھو تمہارے گھر میں جن ہے, تمہارے گھر میں یہ ہے, تم ایسا کرو 8,000 روپیہ دو, تمہارے گھر میں کانٹی ٹھوک دیں گے, 4 کو ٹھیک ہو جاؤ گے.
अब लौट ऐसे के तुम्हारे चल गया। देवबंद के 50 देवबंदी मौलवियों को दिखाऊंगा मैं खुद। हम हाँ। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ के सब वहाँ में सारे करता। बड़े बड़े मदरसे से फारिग मुफ्ती तक मैं दिखा दूंगा। ऐसे काम करके अरे लाखों रुपए भैया, लूट रहे। देवबंदी होने से क्या फरिश्ता हो जाएगा? तो ऐसे देवबंदी हो आप तो जाने से बात फरिश्ता हो जाएगा? असल में है अल्लाह के हुक्म और नबी का तरीका अपने अंदर आ जाए, हाँ असल में तो ये चीज है, समझे? बात और जो आपको है फैसल भाई, देवबंदी बन गया तो क्या हो गया? फैसल देवबंदी भाई हो गया तो फरिश्ता हो गया। आपका नाम फैसल तब है ना? अच्छा फैसल भाई, अभी बात क्लियर हो गया कि गलती बरेलवियों में भी है, देवबंदी में भी है। तो जब दोनों में गलती है, उन गलतियों पर हम बात नहीं करेंगे। हमारे गांव में हाँ तो आप पांच गो या 6 गो इमाम है, समझे? फैसल भाई, बाहर में 10,000 15,000 में बाहर में रहता है, फैसल बड़े बड़े भाई, मदरसे। ओ और फैसल भाई, घर आता है ना तो नमाज छोड़ देता है, फैसल इमाम भाई रात दूसरे बहुत हो मस्जिद गया। में। सुनिए फैसल भाई, तब अभी एक मेन पॉइंट पर बात करते हैं। मेन पॉइंट पर बात करते हैं। मेन पॉइंट पर बात करते हैं। बात यह है कि देवबंदी को हम क्यों गलत समझते हैं, इस पर बात करते हैं। अगर आप उनका जवाब आप सही दे सके तो मैं आपसे मुतमईन हो जाऊंगा और लोगों को भी मैसेज पहुंचेगा कि हाँ ये बात मौलाना जलालुद्दीन ने जो गलती बताए थे वो असल में गलती नहीं है, देवबंदी सही है। बिला वजह बरेली भी लोग देवबंदियों को तनकीद करते हैं, लोगों को बात क्लियर समझ में आ जाएगा। और अगर मैसेज गलती आप आपकी भी है, पहुंचाइएगा, गलती आपकी मैसेज है, आप पहुंचाइएगा। हाँ ये पहुंचाऊंगा, ये जो रिकॉर्डिंग है नहीं ना, नहीं नहीं, इसमें आप जो इस्तग़फ़ार पढ़िए, मैसेज अल्लाह पहुंचाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा अल्लाह पाक, क्या इब्राहिम तुम काबा पर चढ़े हो और पूरे ऐलान कर दो कि हज फर्ज हो गया और सबको हज करने के लिए बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करना होगा। हाँ तो अच्छा कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह जी पाक अकेले हमें कहने से कुछ थोड़ी होगा, अकेले हम कहने से पूरी दुनिया खबर हो जाएगी। अल्लाह ने कहा तुम कह तो दो, तुम मुकल्लिफ हो, ऐलान पूरे दुनिया पहुंचाना हमारा काम है, इसलिए मैसेज कहना अल्लाह तो हमारा पहुंचा। काम है ना, हम जो कह रहे हैं। तब हम अगर अभी ये रिकॉर्ड को हम डिलीट कर दें तो फिर पहुंचेगा नहीं ना। हम अगर पहुंचाने की नियत करेंगे तो अल्लाह पहुंचाएगा, नियत तो हमें करना होगा ना। हमारा काम है दावत देना, हमारा तो काम है दावत सही हम दो रास्ता ही पर दावत देने लाना। की बात कर रहे हैं, सुनिए। तब आप हिदायत तो अल्लाह देगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते 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 घर में खुद चचा जो है ईमान नहीं लाया। अब लोग कहेंगे अरे पहले अपने घर संभालो तब दूसरे को कहना, तो ये गाली किसको पड़ता है जानते हैं? डायरेक्ट हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कि नहीं अपने नहीं, घर संभाल। तब वो ये जो बात है नहीं, घर अपना हिदायत नहीं। जो उसके बावजूद ये भी कहा गया कुरान में, जो आयत है सुनो, कुरान में आयत है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने को और अपने अहलो इयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। तब हाँ तो अपने बेशक को भी, अपने अहलो इयाल को भी जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करना है कोशिश पहले। करना। तब हाँ कोशिश करना है। तो अब मेन तो पॉइंट पे सब आते तो हैं। असल में जो आप कहा सब तो अपने है। इस्लाम जितना भी है, जिसने कलमा पढ़ा सब अपना है, सब हुजूर का उम्मती है, सबको बचाना है, सिर्फ हाँ अपना है। लिखा है हदीस में कि कश्ती पर सवार हो, कुछ लोग जाहिल हो, कुछ जो है पढ़े लिखे हो। एक जाहिल आदमी को प्यास लगे, कश्ती में छेद कर दे, पानी पी लगे, अगर होशियार नहीं रोके तो सारी कश्ती वाले डूब जाएंगे। हाँ दावत का काम इसलिए है। हाँ, तो दावत का काम तो जो अकीदा दुरुस्त है उन लोगों को करना चाहिए, या कोई शिया राफजी कादियानी दावत का काम करेगा तो उस दावत का काम दावत दे रहे बोल के वो हक पर हो जाएगा। शिया हक पर नहीं होगा ना। शिया भी अगर तबलीग करने लगे तो शिया को हम हक पर नहीं मानेंगे ना। शिया को दावत दो, देखिए शिया को तो भी बात दावत लंबी ना देना करे। चाहिए। देखिए 16 मिनट हो चुके हैं, मैं इतना रात भर तो आपसे बात नहीं करूंगा ना, हर बात आप लंबी करते जा रहे हैं। मैं शॉर्ट में जवाब दें। जैसे शिया दावत का काम आपने बताया, तो हम कह रहे हैं देवबंदियों के पहले अकीदा दुरुस्त हो तब दावत का काम करें। जैसा शिया अगर अकीदा गलत है तो वो दावत का काम नहीं, उसकी दावत का काम हमारे नज़दीक मोतबर नहीं है, क्योंकि वो गलत है, वो बातिल है, गुमराह है। इसी तरह अगर देवबंदी भी गुमराह है तो दावत का काम, देवबंदियों के दावत का काम में हम सपोर्ट नहीं करेंगे, जो क्योंकि वो गुमराह गुमराह है। है वो दावत देगा तो उसका दावत मुअस्सर नहीं होगा, समझे ना? कौन बोले दावत मुअस्सर नहीं मुअस्सर होगा? नहीं होगा। ऊपर ये भी लीजिए, दावत आप दीजिए, समझे ना? हाँ। अरे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, मोमिन की मिराज है नमाज, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, समझे ना? हाँ। लेकिन कहते 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 नमाज तो आता है पढ़ने के लिए, लेकिन छूट जाता है, नमाज छोड़ देता आदमी।
ہاں تب نماز کو جو ہے دعوت دیتے رہے گا، سمجھے نا، ہاں لالچ سے بتائے گا کہ دیکھو نماز ادا کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا. ہاں ایک نماز میں جو ہے 3,35,54,432 نے کی ہے، روز دعوت دیتے رہے گا، سمجھے نا، تب ہاں. نہ دعوت مؤثر ہوگا. تو مؤثر ہو لیکن اس کے حق بات حق کا نیت اپنے ثابت کرنا ہوگا نا. یہ اب نہیں کہہ اپنے سکتے سنیے کہ نا، میری دعوت اپنے مؤثر ہے ایمان اس لیے میں کمزور حق پر ہوگا ہوں. اور آپ دعوت دیجیے گا تو نہیں مؤثر نہیں ہوگا. اپنے ایمان ہو کہ دعوت دیتے ہیں، لوگ کہے یہ گا تو دیکھو نا یہ تبلیغ ثبوت والا نہیں ہے ہوئے. دعوت، تب نہ ہوگا. آپ یہ بتائیے علماء دیوبند کی جو گمراہ والی عقیدہ ہے، جیسا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتایا اور شیطان کا علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ بتایا. اور علماء دیوبند نے یہ بھی لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا علم پاگل کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے. ایسی کتابیں جو لکھے ہیں نبی کی توہین کیے ہیں، اس وجہ سے ہم دیوبندی علماء کو کافر سمجھتے ہیں. اب وہ کافر اگر کتنے بھی دعوت دے اور ان کی دعوت کتنے بھی مؤثر ہو، وہ باطل ہی رہے گا، گمراہ ہی رہے گا. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے حدیث پاک میں کہ اس دین کا کام اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر سے بھی لیتا ہے. اس لیے دین کا کام کوئی کر یا اکڑ نہ ہو اس کے اندر کہ میں دعوت کا کام میں کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، میری مقبولیت اور میری حقانیت ثابت ہو گئی. کیوں یہ ثابت نہیں ہوتا؟ کوئی مقبول ہو دیکھیے لوگوں کے بارے میں، اس کا مطلب سنیے، یہ نہیں آپ کہ اللہ کے اتنا بارے جو میں بھی ہے مقبول سنیے ہو. نا، لیپ ٹاپ سے کام نہیں لیجیے، کمپیوٹر کھولنا ہوگا تب مسئلہ سمجھ میں آئے گا. آپ کہیے کہ تنی منی پڑھے لکھے ہیں اور سمجھ جائیں گے، نہیں سمجھ پائیے. ابھی آپ نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. ہاں اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے، جو چاہے جو کر سکتا ہے. آپ کو اگزامپل پیش کر رہے ہیں، ذرا سمجھیے. لیپ ٹاپ نہیں، کمپیوٹر کھولیے. موسیٰ علیہ السلام سارے لوگ 60,000 آدمی لے کے فیلڈ پر جمع ہو گئے کہ اللہ پاک پانی برسا دے. کہا ایک آدمی اس میں پھانسی کا نکالو، باہر نکالو. دیکھیے اللہ کی طاقت ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، وہ سچ بول سکتا ہے، اور رات کو دن کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں. کہا موسیٰ علیہ السلام کو باہر نکالو. کہا اللہ پاک کون ہے برا، جب تک نہیں نکلے گا پانی نہیں پڑے گا. حدیث آپ ہی پڑھے ہوں گے، آپ سمجھ میں آئے گا. نہیں ہے نکلا، نہیں نکلا، پانی پڑنے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک ابھی کہا وہ آدمی پھانسی باہر نکلے گا فیلڈ سے تب پانی برسے گا، اور کوئی نکلا نہیں ہے، اب پانی برسا دیا آپ. سمجھے نا. تب اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ جس کو نکالنے کے لیے کہے تھے اسی کے صدقے میں پانی برسائے ہم. کہا اللہ پاک یہ کیا ہو گیا. کہا کہ اچھا زیارت کروا دیجیے ہم کو تھوڑا سا. کہا اے موسیٰ جس سمے کے نافرمان تھا اس کو ہم بےزتی نہیں کیے، اب تو ہم توبہ کر لیا دل سے. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، سچ بول سکتا ہے، لیکن ہم کو معاذ طاقت اللہ، نہیں دیا، ہم کو طاقت نہیں دیا جھوٹ بولنے کا. معاذ اللہ، اللہ معاذ پاک اللہ پاک بغیر شادی کا رہ سکتا ہے، بغیر اللہ، اولاد کا رہ سکتا ہے. اللہ کی طاقت ہے نا. تب اللہ پاک جو ہے نا غلبہ دے سکتا ہے 313 کو جو ہے ہزاروں آدمی پر. اب کہ کیسے دے دیا؟ اللہ کی طاقت. منی کے قطرے سے، دیکھیے ناپاک قطرے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے. جب ہم لوگ ناپاک قطرے سے ہیں تب کتنا لگ جائے تو بغیر نہائے پاک نہیں، اور کوئی سٹے گا نہیں، اب نماز نہیں ہوگا. لیکن اللہ پاک نفرت کو محبت میں بدل دیا ہے کہ جیسے پیٹ سے بچہ نکلا ولیمہ خوشی ہی بوسہ لینے لگتا ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے. بات جھوٹ ہو اور گئی سچ آپ کی. آپ اس کی لمبی نہ کریں زیادہ، ابھی تھوڑی دیر میں بات ختم کریں گے. ہاں پھر کل بات ہوگی. ٹھیک ہے. پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے شان کے خلاف اللہ نہیں کرے گا، کیونکہ جو قرآن شریف میں جو ایک بات کہہ دیا اس بات کے خلاف اللہ خود نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی قرآن جھوٹی ثابت ہوگی. اگر اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، آپ بول رہے ہیں، تو پھر قرآن کی جو آیات ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ خود لعنت کر رہا ہے جھوٹوں پر، اور اللہ فرما رہا ہے اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں. تو جھوٹ بھی بولے سچ بھی بولے تو پھر اس سے بڑا مقصد سچا ہے نا دوسرا حضرت، ہو جائے گا نا. آپ نہیں سمجھ پا رہے، شیطان کے وسوسے میں آ گئے ہیں. نہیں، دیکھیے شیطان کا وسوسہ میں آپ ہیں. سنیے، نہیں اللہ معاف کرے.
देखिए आप जो है ना माल के मोहब्बत में हजरत, समझे ना, वो आप तो लोग तो आपने उतना देख लिया। नहीं होंगे। देखिए आप तुरंत समझिए यहाँ पर, देखिए माँ से ज्यादा मोहब्बत जो है ना, माँ की मोहब्बत जो है ना जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है। लेकिन साद बिन वक्कास रजी अल्लाह अन्हु एक सहाबी है, जब ईमान ले आया तो माँ को इतना ज्यादा चाहता था, इतना चाहता था, समझे ना, हाँ लेकिन जो है माँ जो है नाराज हो गई कि हाँ जब तक है कि अब तो ये गैर कौम काफिर बनबे करेगा, इस्लाम छोड़ देगा, समझे ना, हाँ लेकिन नहीं गया, उसको पानी तक नहीं पिलाया, और बड़ा भाई उसका जाके पानी पिलाया, समझे। लिखा है कि जब माँ बाप अगर नाफरमानी की बात कहे, शराब पीने के लिए कहे, हराम खाने के लिए, उस बात को नहीं मानना है माँ, समझे ना। तो दोनों बात है, ये अल्लाह की ताकत है। ये बात को आप दिल से खोज समझिए, दिल दिमाग को खोजिए। अरे भाई क्या- सवाल गंदुम जवाब चना। फैसल भाई आपने तो, मैंने कहा कि देखिए अल्लाह जो बात पहले एक बार कह चुका उसके खिलाफ अल्लाह नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह कुरान में खुद फरमाए इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता, अल्लाह अब अपने बातों का खिलाफ नहीं करता। तो अल्लाह ने जब कह दिया कि अल्लाह एक सबसे बड़ा सच्चा है, तो अब झूठ बोल सकता है बोलकर आइब को, आइब वाली झूठ आइब है या खूबी है बताइए? आइब है, तो अच्छा एक बात सुनिए आइब हजरत, है। तब और तो आइब आपको अल्लाह सुनिए ना, वो हदीस पर तब कोई यकीन नहीं है आपको जो कौन सी हुजूर हदीस पाक पर? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। बुखारी की हदीस है कि बनी इसराइल में जब जो है ना, जब अति कहत पड़ा, जब अकाल आया, पानी जब पड़ना बंद हो गया, तो वो हदीस है, तो वो तो हदीस तो गलत है। कौन सा तब तो गलत अल्लाह है? झूठ झूठ बोल दिया, अल्लाह तब कौन तो सा झूठ झूठा बोल है। दिया? वो ये कहीं भी नहीं है। और ऐसी इसमें तो ये साबित नहीं हुआ कि अल्लाह झूठ बोला। झूठ अल्लाह झूठ देखिए, बोला बोल के यहाँ, तो अब जब झूठा आप बिल फेल, ये इससे आपके उलमा के खिलाफ भी आप चले गए। नहीं इससे नहीं, झूठ आपको ये सुनिए, बात झूठ ये बात, नहीं। ये सुनिए एक बात, ये बात कहकर आप अल्लाह झूठ बोला बोल के आपने जब कहा, तो अब यहाँ पर आपके उलमा के भी खिलाफ बोल गए आप, क्योंकि आपके उलमा ने भी जहाँ झूठ वो लिखा है। बात झूठ सुनिए, नहीं है, वो तो झूठ बात नहीं जो है है तो प्यार इसमें दलील मोहब्बत आपने की दिया है। कि ये हदीस को झूठा अब फिर है कैसा होगा? देखिए सुनिए, अब माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ बाप के इतायत में रहो। अब फिर कह रहा अल्लाह पाक खुद कह रहा कि माँ बाप की बात हरगिज नहीं मानो, अगर वो बुराई के तरफ इशारा करे, तब कोई हाँ। झूठ हो गया। झूठ नहीं, जो मकसद है यहाँ आप तावील करके कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ जवाब वहाँ फिट नहीं समझने हो की रहा है। सलाहियतें न समझने की कीजिएगा क्या। सलाहियत आप में नहीं दुनिया है। दुनिया आपके के उलमा, तरफ आप हैं पहले तो हजरत। आपने पहले ये कहा कि ये हदीस आप नहीं मानते, जब अल्लाह ने इस हदीस में माज़अल्लाह अल्लाह की बात झूठ हुआ, देखिए एक बात झूठा सुनिए, हुआ बोल शिर्क के जो है बता ना, रहे हैं। अल्लाह को छोड़ के दूसरे से मांगना, समझे ना, ये शिर्क है, ये कभी माफ नहीं है। तो और आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ के दूसरा तरीका अख्तियार करना, कल फिर ये इस, बिदअत है, ये माफ नहीं है। अच्छा फैसल भाई इस पर बात करेंगे। अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है, इस पर शिर्क बात करें। नहीं, महा शिर्क है, वो काफिर हो गया इंसान अच्छा, जो भी है वो काफिर हो गया ना? तब। हाँ, हम्म, जो भी है वो काफिर हो गया। तब और ये बताइए, ये जो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, या रसूल अल्लाह मदद कीजिए बोलकर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की खुद किताब में लिखे हैं, कासिम नानूतवी खुद किताब में या रसूल अल्लाह मदद करके लिखे हैं, अल्लाह के रसूल से मदद मांग रहे हैं। छोड़िए इमदादुल्लाह वो मुहाजिर क्या है मक्की, न है, मैं वो क्या आपको है स्क्रीनशॉट न हम भेजूंगा लोग उसको। जानते हैं। या रसूल अल्लाह मदद करके हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो देवबंद के सबसे बड़े पीर हैं, आपके फतवे के मुताबिक वो भी मुशरिक और काफिर महाशिरक बताए, और सबसे बड़े मुशरिक और काफिर से भी बदतर आप मान लिए। और कासिम नानूतवी जो देवबंद मदरसा का बानी है, उसको भी आपने काफिर और मुशरिक मान लिए, क्योंकि वो भी या रसूल अल्लाह मदद पुकारते थे। और कसीदा भी लिखे हैं कासिम नानूतवी, मदद कीजिए या रसूल अल्लाह। हाँ, तो उनको मुशरिक, आपने मुशरिक और काफिर डिक्लेयर कर दिए। अरे जनाब, आप बात में इस तरह शिरक का फतवा मत ठोको। जब वो जिस बात पर बहस हो रही थी उस बात को बहस करने के बजाय आप वहाँ से फरार इख्तियार करके दूसरा मसला आपने उठाया। अब इस मसले में मैं हदीस से दलील दे सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तफसीर से दलील दे सकता हूँ, और सबसे पहले तुम्हारे बुज़ुर्गों की किताब से भी दलील दिया कि उन्होंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
मदद मांगे देखिए हैं। हजरत, आप भी अपने हैं, हमरा समझे ना, आप भी आप हुजूर पाक मुशरिक सल्लल्लाहु कह अलैहि वसल्लम के, की आप उम्मती मुशरिक हैं। सुनिए काफिर ना, आप भी उम्मती हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हम भी उम्मती हैं, दोनों भाई हैं, तो समझे ना। क्या नरेंद्र आपसे मोदी, यही रिक्वेस्ट है, आप आपसे सुनिए, यही मैं कह रहा हूँ कि ये आप जो है ना रिया को दिल से निकालिए और मैं इखलास अख्तियार उम्मती किया। हूँ, मैं उम्मती हूँ, आप भी उम्मती है। क्या योगी आदित्यनाथ नबी की उम्मती नहीं है? अभी देखिए लोग जो है ना, अभी अभी मैं फिर बोल रहा नया हूँ, नया मजहब निकाल रहा है। आप तो नए होंगे उसमें, एक गो समझे ना। आप अभी गए थे हम, समझे ना, यहाँ क्या नाम है हो, मुरादाबाद। अभी 40 दिन हम वहाँ लगा के आए, समझे ना। हाँ 40 दिन थोड़ा सा कुरान में गलती हो गई थी, समझे ना। मैंने हाँ अल्फाज मखरज सही नहीं हो रहा था, 40 दिन लगाए। मरकज गए दिल्ली, एगो आलिम दिया 40 दिन सिखाने के लिए, बेचारा सिखाया लेकिन फिर भी ना बोल सका। 4 महीना लगा, बोल रहा था लगाने, थोड़ा काम था घर में, चले आए, समझे ना। अभी देखे, हालांकि अब देखिए जिंदगी बरेली से भर भी आप जब, तबलीग जमात में कुछ सीख नहीं पाओगे। अगर सीखना है मेरे पास आओ, मैं आपको 1 महीने में सिखा दूंगा। हाँ और वो तो इंशाअल्लाह, देखिए बड़े एक सोबत में रहना होगा, आपके साथ रहें या किसी के, बड़े एक हाँ, सोबत में रहना मेरे ही होगा। साथ में रहो, मेरे पास पढ़ो, और 40 दिन क्या 1 महीने के अंदर आपको तजवीद के साथ, मखारिज के साथ अभी सिखा जानते दूंगा। हैं हजरत, हाँ एगो नया फिर दिन निकाला है। हाँ आप तो नहीं जानते, अभी जानबूझ करते हैं। वो जो मुसाफा करते हैं, समझे हाँ ना, हाँ। वो कैंची के तरह हाथ ऐसे करके, वो वैसे मुसाफा नहीं होगा। तो कौन बोला हम भी ऐसा कर मुसाफा नहीं लिए। होगा? हाँ, कसम से आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। कैंची के जैसे ऐसे हाथ दोनों है ना, हाँ, ऐसे दोनों मिला हाथ के, दोनों तरफ वो मुसाफा जायज है, कौन बोले जायज नहीं है? ये ये कैंची के मुसाफा तरफ, भी समझे साबित है, ना। कैंची की तरह, कौन बोले मुसाफा नहीं होगा? ये नया दीन थोड़ी है। ये मसला मसाइल का इख्तिलाफ से दीन नहीं बनता। दीन जो है अकायद से दीन अलग होता है। अगर आपका अकीदा गलत है तो आप अलग दीन वाले हैं, और आपका अकीदा गलत नहीं है, छोटे मोटे पुरुई मसाइल में अगर चलिए, इख्तिलाफ है, अकीदा उससे दीन। कब्र आप में बोले हिसाब अल्लाह देगा, झूठ बोल सकता है, आप आखिरत मान में तो रहे हो। हिसाब छोड़ेगा है। हाँ? आखिरत में छूट होगी, बचेगा इंसान। तो वहाँ अल्लाह का सीसी कैमरा लगल है हर जगह, हर जगह। वो तो दिलों के राज को जानता है, दिलों के वसवसा को जानता है। तो आप आखिरत में अगर नहीं छोड़ेगा, जान रहे, फिर भी आप बदअकीदी की गुमराही इख्तियार किए हुए हो, कह रहे अल्लाह झूठ बोल प्योर सकता दीन है। उतना खर्च आप करके प्योर मौलवी दीन पर चलना है कि डुप्लीकेट फैसल दीन साहब, पर। ये बताओ, सुबहान रब्बियल आला नमाज में जो पढ़ते हो, सुबहान रब्बियल आला, इसका माना बताओ, इसका माना बताओ। सुबहान रब्बियल आला, हाँ, इसका माना बता दो, बस बात खत्म हो जाएगी। माना तो हम नहीं जानते हैं। अब मैं बताता हूँ। सुबहान पाक है, पाक है वो रब, जात। मेरा रब पाक है, और वो बड़ाई वाला है। पाक है रब्बियल आला, सुभान रब्बी अल्लाह आला। मेरा रब पाक है, बड़ाई वाला है। तो पाक है, किस चीज़ से पाक है अल्लाह? हर चीज से पाक है। हर चीज़ से पाक नहीं, आइब से पाक है, बुराई से पाक है, खता से पाक है, गलती से पाक है, पाक है। अब ये इसके अंदर आइब हो सकती है, ऐसा मानकर अगर आप कह रहे पाक हैं, तो आप खुद झूठ बोल रहे हैं, नमाज में झूठ बोल रहे हो। आपके क्या, आपके मौलवियों ने आपको थोड़ा भी अकल अगर इस्तेमाल करके आपको मौलवी लिखे होते और आपको सिखाए होते, तो आप ऐसा नहीं कहते कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, क्योंकि अल्लाह हर आइब से पाक है, और झूठ एक आइब है। अल्लाह आइब है, झूठ क्या है? झूठ तो बोल ही नहीं सकता। तो मैंने फिर बोल ये रहे हैं झूठ, अभी आप मान गए झूठ बोल नहीं सकता, और ये इतनी देर झूठ से आप नहीं बोल रहे हुआ थे कि हो। अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये झूठ नहीं हुआ, ये प्यार से इंसान को जो है ना, जैसे ए देखो बेटा, बच्चे को 1 रुपया तुमको नहीं देंगे चॉकलेट खाने के लिए, समझे ना, आज 2 मिनट के बाद तुरंत 10 रुपया निकाल के दे दिए, जा बेटा रसगुल्ला खा लेना। नहीं, झूठ नहीं बात हुआ। ये दूसरी, अल्लाह ताला के शान में जो बातें आपके उलमा ने लिखी है, नबी के शान में बहुत गलत लिखे हैं। झूठ अल्लाह नहीं बोल जो सकता। लिखा है पकड़ाएगा हजरत, सुनिए ना। पकड़ाएगा तो जो उसकी तरीके पे आप चल रहे हैं, उसके रास्ते पर चल रहे हैं। इतनी देर से आप जस्टिफाई कर रहे थे, आप उस पर कायल तस्लीम करेंगे हम। जो गलत लिखेगा उस पर तस्लीम करेंगे, उतना इल्म अल्लाह पाक दिया है। हाँ, लिखने तस्लीम दीजिए करो जो है। और वापस फिर बरेलवी में आ जाओ। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस रास्ते पर आप चल रहे, जिंदगी भर चिल्ला चिल्ली करोगे तो
कोई आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि जितना उस रास्ते पर चलोगे उतना जहन्नम में और जलोगे, और दुनिया में भी भटकते रहोगे, आखिरत में भी भटकते रहोगे। मेरे भाई फैसल साहब, आप सच्चे दिल से तौबा करो, और जो अकीदा गलत है आपको बताता रहूँगा, और उन गलत अकीदे को आप छोड़कर सच्चे अकीदा, बरेलवियों का अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह 100% सच्चा है। जो गलत अकीदा आपको दिख रहा है उसका मैं जवाब दूंगा, आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। कल बात होगी, आज बहुत लंबी बात होगी। सुनिए ना, बरेलवी में तो कोई जल्दी नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि इमाम भी जल्दी नहीं नहीं, पढ़ता जो नमाज ना पढ़े वो सच्चा बरेलवी नहीं है। सच्चा बरेलवी जो वो है जो नमाज भी पढ़े, 100% शरीयत के मुताबिक चले, उलमा की कदर करे, कुरान पढ़े और हदीस पढ़े, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में सजाए, वो सच्चा बरेलवी होता है। शिर्क और बिदअत कदम कदम पर करता है। अच्छा, कौन कदम कदम पर करता है कल बता देंगे, अभी तो आपको मैं बताया कि आप शिर्क देखिए, जो सबसे बताया बड़ी बात सुनिए, ये देखिए ठौने थी घुटना से नीचे जो है पजामा पहनना, ये जो है ना भाई, अच्छा नमाज चलो, में इस बात को आपको कल समझाऊंगा, ठीक है? है। कल इंशाल्लाह लंबी फिर कॉल टोपी पहन करूंगा। लेता है, लंबी टोपी उतना वो तो तकब्बुर की अलामत है, वो होगा नमाज होगा? बोलिए। अच्छा, लंबी टोपी तकब्बुर की अलामत है। तब आप देवबंद में चलिए, चलोगे मेरे साथ, दिखाऊंगा कितने बड़े बड़े देवबंदी उलमा लंबी टोपी पहनते थे, और जो आपके बड़े बड़े उलमा जो पहनते थे ना, वो मैं आपके उलमा की फोटो भी दिखाऊंगा। लंबी टोपी और ऊंचा पाजामा ये कोई शिरक और बिदअत नहीं है, हाँ, और नीचा पाजामा भी कोई ये नहीं है। और अभी असल क्या है, अकीदा है। अकीदा से आदमी, अच्छा सुनिए, लास्ट में एक बात बोल रहे हैं। हाँ। दीन जो है ना, अपने नफसानी ख्वाहिशात का नाम दीन नहीं है, नफ्स के खिलाफ चलने का नाम दीन है। इस बात पर रात भर सोचिएगा। देखिए हम क्या बोले, तो दीन नफ्स के ताबे चलने का नाम जो है ना, नफ्स के ताबे चलने का नाम दीन नहीं है, नफ्स के खिलाफ चलने का नाम दीन है। अच्छा, तो फिर आप नंगे घूमे फिर आज से, क्योंकि आपका नफ्स तो कहे अच्छा कपड़ा रात भर इसका सोचिए। सुनो, नफ्स जो कहेगा कि जरा सही कर लो, करते चले जाओ, ये दीन नहीं। तो फिर फैसल साहब, आप अशरफ अली थानवी की मामू की तरह नंगे होकर घूमे कल दिन भर, हाँ, क्योंकि आपका नफ्स तो कह रहा है कपड़े पहनो, तो उसके खिलाफ करना है ना। ओह, आप नहीं समझे, हर बात का खिलाफ करना है ना नफ्स को। नफ्स तो कह रहे कपड़े पहनो, तो आप नफ्स के खिलाफ ये चलना है कि कपड़े नहीं पहनना, नफ्स के खिलाफ करना है, नंगे होकर पूरे बाजारों में घूमे अशरफ अली थानवी के मामू की तरह, और जो थानवी के मामू का जो डिमांड था उस डिमांड को भी पूरा करे कल, ठीक है? फिर कल रात में आपसे बात होगी। अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह कितना अच्छा आदमी था, कभी शिर्क बिदअत नहीं किया। ये मौलवी सब जो है अपने मन से मर्जी कर, आला हजरत बोलो, आला हजरत बोलो, तब ये सब जो बताइए। आला हजरत ने जो बोले अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी पर चलते हैं। आप खुद कह रहे हैं ना आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छे आदमी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी अच्छे आदमी के रास्ते पर। मकसद है उसके मुंह में बोलने में, क्या बोलने में? आला हजरत, देखिए आला हजरत के दीवानो, एटीएम खोलो जी, एटीएम खोलो, चलो 50-100 टका लूटना है, माल लूटना। आला हजरत कौन है पूछने लगेगा तो बताना मुश्किल हो जाएगा, समझे ना। आला हजरत के दीवानो, आला हजरत के मस्तानो, एटीएम खुला लो, ये सब जो है ना लूटना हुआ, समझे। ये कोई एटीएम या आला हजरत के नाम से एटीएम से कौन पैसा ले रहा है? नात में नहीं पड़ता है, नहीं बात है। आपकी ये मनगढ़ंत बातें हैं। एटीएम से थोड़ी हम लोग पैसा लेते हैं, लोग लुटाते हैं, खुद बखुद लोग लुटाते हैं आला हजरत की मोहब्बत में। अरे गौर कीजिए, समझे ना, मुर्तद हो रहा है, 90% मुसलमान मुर्तद हो रहा है, समझे ना। अब की बार जमात में थे, जो देवबंदी हो रहा है वो तो सबसे बड़ा मुर्तद हो रहा है। 60 बरस का आदमी सुभान रब्बी अल अज़ीम नहीं पढ़ सकता था। बोले उतना दिन से नमाज पढ़े हजरत, बोला मौलवी तो सिखाया कुछ नहीं, बरकत दो, बरकत दीजिए, बरकत दीजिए, पढ़ते थे रुकू में, आज सजदा में रहमत दीजिए, रहमत दीजिए। रोने लगा वो जमात में जब गया, बेचारा जारो कतार रोया पूरा। हाँ, तो ऐसे लोगों को ही मुर्तद बना रहे, जैसा आपको कुछ मालूम नहीं था तो आपको गुमराह करके जमात में ले गए, और जमात में जाके और बड़ा गुमराह कर दिया आपको। देखिए गुमराही के दलदल में फंसा समझे ना हजरत, 73 फिरका में शिया बन जाए, कदियानी बन जाए, सब ठीक है, बेहतर, समझे ना। लेकिन बरेलवियत जो है इंशाअल्लाह कुरान कसम खा के बोलते हैं सबसे बदतरीन फिरका है।
इसमें इसीलिए यही फिरके के वजह से कैसे मुनाफिक, कैसे कैसे मुनाफिकत तुम दिखा रहे हो। समझे ना? तुम अभी तो तुमने अभी कहा हम आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह कितने अच्छे आदमी थे, इसी के वजह से फरमाया और उसके हुजूर बाद पाक तुम सल्लल्लाहु अलैहि बदतर फिरके बता रहे समझे हो। ना कि जो है ना कि सबसे पहले आलिम और उलमा जहन्नम में डाला जाएगा, यही नहीं, वजह से। तुम अभी कितनी बार पिंतरे बदले, कितने तुमने गलत, पहले कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, बाद में कहा कि नहीं अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता है, फिर तुमने दोबारा सुबहान रब्बियल आला का तर्जुमा तुमको नहीं आया। बातें नहीं समझोगे। अच्छा, तुम गुमराही के दलदल में, तुम तौबा तो शायद तुम्हारे नसीब में होगा या नहीं मालूम नहीं, क्योंकि तुम जो कह रहे कादियानी, तुम्हारे उलमा खुद कादियानी को काफिर कहते हैं, और आज तक तुम्हारे कोई देवबंदी मौलवी की हिम्मत नहीं हुई कि हमको काफिर कह सके, और हमारे पीछे तुम्हारे हज़ारों बरेलवी हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमको मुसलमान समझते हैं, हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं। अब तुम फतवा ले लो, कादियानी के पीछे नमाज कोई देवबंदी पढ़ सकता है क्या? देख लो, कोई देवबंदी फतवा नहीं दे सकता, क्योंकि हिम्मत नहीं है देवबंदियों को। हाँ, हमारे खिलाफ फतवा देने की हिम्मत नहीं है। अब तुम जैसे जाहिल अनपढ़ गवार लोग कुछ भी बकवास करे और तुम्हारे दिमाग को इस तरह खोखला कर दिया, तुमको ऐसा बेवकूफ़ बना दिया कि तुमको अकल से पैदल कर दिया गया बिल्कुल, और जितना अकल तमीज़ तुम्हारे अंदर था उसको भी उन लोगों ने सल्ब कर लिया है। इस वजह से तुमको हक समझ में नहीं आ रहा है। तुम बार बार, कितनी बार तुम बदले अपने लफ्ज़ को, अपने कौल से तुम बदल गए। चलो कल बात करेंगे, कल तुम्हारे शिरक और कुफर पर बात करेंगे, और फिर पाजामा ऊंचा पहनने के बारे में, ऊंची टोपी पहनने के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है? चलो आज इतनी बात काफ़ी है।